أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, hope the greetings will find you in good spirit and health, and you are doing well in your studies, and you are all hale and hearty over there, and getting along with your studies as usual. We have been reading your chapter number 9. It's a story about caring about other people's. How do we show care? This was the theme we have been given. So in this story, before we read the story, you have been asked some questions like things that you can share with your siblings and friends, things that you can share with those who don't have all those that you have in your life. Sharing is why sharing is important, because it makes us feel that we belong to the same community. It helps us enhance or enrich our relationship with our relatives and friends. These are some of the points you are supposed to write. If you have written, it's okay. If you haven't written yet, still you can write it. And now as we have already started reading this, we have divided into three parts. This is the last part I'm going to finish it today. Let's get try to get a quick revision. As it is about caring, we have started our class with the tradition of the Holy Prophet that someone who gets up early in the morning is not concerned about the affairs of other Muslims is not a Muslim. So how important it is as far as the Holy Prophet is concerned, as far as यहाँ पे आपको वो concerned बोला था ना, from the point of view of the Islamic point of view or the Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. So Ju was a young girl who lives with her mother, and we have been told that her father had been killed in a tragic accident a few years ago. Her mother is a domestic help, and many of the things that Ju uses, like textbooks, school bags, lunchbox, umbrellas, and all of the things are secondhand. But she is a practical girl, and she knew what had happened in her life, what her mother does in her life, क्या करती है वो. And she carefully looks after all the things, and she's also a cheerful girl. She never complains about. She was not grumping against things. In Islamic traditions, people are of two categories. One is someone who is thankful to God. Other are the peoples who are always grumping against that I don't have this, that, and others. As in the Holy Quran, it said that لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Those who constantly showing their thankfulness towards God will be provided with more of the blessings, and someone who constantly grumbles complaining against things that I don't have this kafartum, yani someone who defies that he had nothing given by the Lord would definitely is going to get into troubles by his own deed of showing ingratitude towards the Almighty. So this is how she is practical in her life, and she never thought of things that enter in her life as secondhand. As far as she was concerned, those things were entering her life for the first time. And she used to never cross out the names of the other peoples who were the owners of in terms of books, the owners who has written their names, as if she feels like as if she's making new friends. And when she used to write her own name, P.R. Manju, and it was told that it is the name of her family given by name. That means upon the flowering tree. And everyone called her Ju, and she is now going up to 8th class, division B. And she told us that her name was Rashent, means shortened to make it a little bit funny, like her mother did with rice, dals, and other basic necessities in her life, like salt, oils, and others. She also loves being called Ju in every condition, as it is easy to remember
for everybody, but some people were there who used to ask her whether it is a Christian, Muslim, or a Jew's name, sorry, or a Hindu name, but she told them it's just a name. Of course, there were size problems with the blouses, the skirts. They were sometimes too short or too long, but you know, her mother, Madhu, used to beg Ali, who share her mother would beg Ali, with whom her father had shared her work, to alter their clothes to suit Joe. One day she was caught in the street by an old lady, and she mistaken her as her granddaughter and called her Lizzie. When she found that she was not Lizzie, she told her that of course you are not Lizzie. My eyesight was not what it used to be in my young age. You are Madhu's daughter. And she hugs her, embraced her, and she told her that you look so pretty in that dress, and you look so much like her granddaughter Lizzie in that dress. Now Jude told that old lady that would she mind if she would go along with her to the church. She told her that she would be fine. She is fine, and she wants to go by herself. And she told her that it was she was wearing the dress of Lizzie. This was told by Jew. Then she was praised by the old lady that she looks so beautiful in that dress. And before that she was never called by she was never praised like that by anybody in her life. Nobody had called her that before. So she stood there for a moment, thinking about why she had told her. Here you have been told that you stood there wondering. Wondering means to wishing to know why she told her like that. And now from here we are going to continue today. You always found a little keepsakes. Keepsakes means memories. यहाँ पे दिया हुआ meaning. From the previous owner, sleeping in the pages in the sense not sleeping like we sleep in the bed or somewhere. So it means lying there. पढ़े हुए होते थे उसमें, in the pages of the books होते थे. Her mother browsed, जो उसकी माँ उसके लिए किताबें लाती थी. तो यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है. There were pictures of film stars. आपको बोला था कि film stars कोई अच्छी चीज़ नहीं है. आपको कल इसमें बताया था. इसको ज़्यादा नहीं बताएंगे. इसमें दो चीज़ें बताया था. हीरो होता है, उस्तूरा बोलते हैं उसको अरबी में, और कुरान में दूसरा वर्ड है उसवा है, यानी आइडियल है, जो इनफेलेबल मासूमीन हैं जिनको हमें फॉलो करना है. अच्छा, और फुटबॉल इन क्रिकेट प्लेयर्स, कुछ लोगों का शौक़ होता है तो वो रखते हैं जिसका जैसा शौक़ है. आप देखें कौन किस तरफ जाता है वही डिसाइड करता है. कोई खेलता है तो वो हमेशा खेलता ही रहता है, जो कोई पढ़ाई लिखाई करता है वो आगे की तरफ जाता है. तो इस तरह से मिसालें हैं, आपको क्लियर है, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि जो जिस तरफ जाना चाहता है वो उस तरफ ले जाता है उसको. तो फुटबॉल एंड क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ऑफ सिंगर्स होते हैं, इन ऑफ गुड गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं, देवी देवताओं की पिक्चर्स होते हैं. आपको हिस्ट्री में ये वर्ड मिलते हैं. ड्राइड फ्लावर्स, कभी कभार सूखे फ्लावर्स, अभी बाहर का मौसम है तो बच्चे फूल रख देते हैं तो सूखे फ्लावर भी मिल जाते. पीकॉक फेदर्स मिल जाते. समटाइम्स लिटिल पोएम, कुछ कभी कभार थोड़ा सा छोटे पोएम लिखे होते हैं, इस तरह मिल जाते. एंड समटाइम्स ए प्रेयर, कभी कभार कोई प्रायर लिखा हुआ मिल जाता. वंस यू फाउंड ए बटरफ्लाई प्रेस्ड बिटवीन द पेजेस ऑफ हर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, ड्राइड अप, ब्रिटल एंड फॉल ऑन. आप देखो, एक बार क्या हुआ, जू को एक बटरफ्लाई मिला, प्रेस्ड बिटवीन हर पेजेस, द पेजेस ऑफ हर ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक. ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक के बीच में बिल्कुल प्रेस दब गया था वो बटरफ्लाई, और क्या हो गया था, ड्राइड अप, बिल्कुल सूख गया था. और ब्रिटल, ब्रिटलाइजेशन इजीली ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाए. ठीक है. फॉरलॉन मतलब जिसको लेफ्ट अलोन, जिसको तनहा छोड़ दिया गया हो. अनहैप्पी, क्योंकि कोई उसमें बीच में दब के मर जाए तो अनहैप्पी होगा. तो फॉरलॉन वहाँ पे सैड एंड एलोन देयर, वहीं पे किताब के बीच में मिलता है उसको. सम डस्ट ऑफ इट्स विंग्स कलर्स, उसके जो विंग्स के कलर, परों के जो कलर होते हैं उसका डस्ट जो होता है, हल्का सा जो गर्द निकल रहा था सूखने की वजह से, हेड रफ्ट ऑफ ऑन द पेजेस. रफ्ट ऑफ मतलब उधर उधर घिस गया था, उसके पेज से लग गया था. एज इफ दैट वाज द लास्ट थिंग द बटरफ्लाई हैड टू गिव बिफोर फोल्डिंग देम अप फॉर एवर. ठीक है. तो ऐसा लग रहा था द पेजेस एज इफ से मानो, या जैसे कि आप दोनों बोल सकते हो, मानो कि ये आखिरी चीज़ थी, द लास्ट थिंग था, द बटरफ्लाई हैड टू गिव, जो दे सकती थी, जो उसने दिया था, बिफोर फोल्डिंग देम अप फॉर एवर, इससे पहले कि वो अपने उन परों को हमेशा के लिए बंद कर ले, उससे पहले ये आखिरी चीज़ थी जो वो शेयर कर सकती थी. तो वो ऐसा सोचती है. देन देयर वर पोस्टेज स्टेम्स. अब वहाँ पे कुछ पोस्टेज स्टेम होता है, पोस्ट के ऊपर जो
न्यूज़पेपर, सॉरी न्यूज़पेपर नहीं, जो आपके पोस्टमैन जो लेटर्स होते हैं उस पर कुछ स्टेम्स होते हैं, गांधी जी का फ़ोटो लगा होगा, किसी और का लगा हो, इस तरह से स्टेम्स हो जाते, तो उसके कुछ पीसेस होते। ईच स्टेम वॉज लाइक ए मिस्ट्री स्पीकिंग साइलेंट टू हर, उसको लगता है कि हर स्टेम्प जो है वॉज लाइक ए मिस्ट्री, एक राज की तरह है, जैसे कि कोई मिस्ट्री जैसे राज, समथिंग दैट इज नॉट नोन टू एवरीबडी, स्पीकिंग साइलेंट टू हर, जैसे कि वो खामोशी से उससे बात कर रहे हैं। शी हैड नेवर रिसीव्ड ए लेटर इन हर लाइफ, उसने कभी ज़िंदगी में कोई जो है लेटर जो है रिसीव नहीं किया था। शी हैड वॉच्ड द पोस्टमैन पासिंग देयर होम एंड ड्रीम्ड अबाउट ही स्टेपिंग इनटू देयर यार्ड विद ए लेटर इन हिज हैंड, वो उसने देखा हुआ था कि जो पोस्टमैन है, डाकिया है, वो उसके घर से गुजर जाता है उसके करीब से, और उसने वो ख्वाब देखती थी, मतलब सोचा करती थी, यहाँ पे ड्रीम्ड अबाउट नहीं, सोचा करती थी कि वो हमारे घर में अंदर आता है इनटू द यार्ड, जैसे आंगन में जो यार्ड होता है, विद अ लेटर इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक लेटर लेकर। नॉर हैड शी और हर मदर रिटन ए लेटर, ना ही उसकी माँ ने और उसने कभी लेटर लिखा था। दे हैड नेवर ब्राउड ए पोस्टल एनवलप, कभी पोस्ट के लिए एनवलप भी उन्होंने कभी नहीं लाया था, लिफाफा। इनलैंड लेटर होते हैं जो नेशनल या डोमेस्टिक जो थी हमारे ही मुल्क के अंदर हो, इसलिए लेटर के लिए पोस्ट कार्ड्स और स्टैम्प्स। पोस्ट कार्ड होते हैं जिसमें क्या होता है कि स्टैम्प के साथ होता है, जिसपे सीधे लिख कर उसी को दे देना होता है, तो और स्टैम्प होता है, ठीक है, या स्टैम्प जो होता है स्मॉल एडहेसिव टोकन होता है, इस बियरखानी टोकन जो उसको चिपका देते हैं उसके ऊपर। अगर आपने देखा हो तो देख सकते हैं, आप कहीं पे भी इसको देख सकते हैं। समटाइम्स शी फाउंड अनयूज्ड स्टेम्स, कभी उसको स्टेम्स मिल जाते जो बिल्कुल यूज़ नहीं किया हुआ होता था। बट जू कुड नॉट थिंक ऑफ यूजिंग देम टू राइट टू एनीबडी बट हर फादर। अब देखो, जू किसी के बारे में नहीं सोच सकती थी, यूजिंग देम टू राइट टू एनीबडी, किसी के लिए लिखने के लिए, वो इस्तेमाल करने के लिए वो किसी के बारे में सोच नहीं सकती थी किसको लिखे, बट हर फादर, सिर्फ उसके वालिद के अलावा। बट शी न्यू ही हैड नो एड्रेस, मगर वो जानती थी क्योंकि उसका कोई एड्रेस नहीं था। डेड पीपल हैव नो एड्रेस, अब देखो डेड पीपल के पास तो कोई एड्रेस नहीं होता है, ठीक है, मगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखा जाए तो हम फातिहा ख़वानी करते हैं, हम उनके लिए दुआएं करते हैं, तो पॉइंट कुछ और भी है इसमें। अभी फ़िलहाल तो आम जनरल सी बात कर रहे हैं, तो डेड पीपल के पास कोई एड्रेस तो नहीं होता कि वो लिख सके आम लाइफ के बारे में। अब देखो एज़ यूजुअल, तो रोज़ की तरह क्या हुआ, जैसे मामूल की तरह, जैसे उर्दू में आम जो करते रहते थे, बिफोर स्कूल रीओपन, स्कूल खोलने से पहले, हर मदर हैड स्टार्टेड ब्रिंगिंग होम बुक्स, घर बुक किताबें लाना शुरू कर दिया, एंड ड्रेसेस और कपड़े लाना शुरू कर दिया। एंड मधु वाज सो प्राउड ऑफ जूस मूविंग अप that when she took Jew to Ali to alter the old dresses, she could not wait till he began a conversation. अब देखो, एंड मधु वॉज सो प्राउड, यानी उसको बहुत फ़ख्र महसूस होता था, ऑफ जूस मूविंग अप, कि जू जो है अगले क्लास में जा रहे, दैट व्हेन शी टुक जू टू अली टू अल्टर द ड्रेसेस, द ओल्ड ड्रेसेस, कि वो जब देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, जू को लेके जाती है अली की दुकान पे, ताकि उससे वहाँ पे जाके क्या करे, मधु जो है वो उसको ओल्ड ड्रेसेस को अल्टर करने के लिए ले जाती थी। शी कुड नॉट वेट टिल ही बिगन ए कन्वर्सेशन, ये उसकी माँ जो है वो इंतज़ार नहीं कर सकती थी इससे पहले कि वो बात करे, कोई बात करे, कन्वर्सेशन करे। एंड अनाउंसर, उसने ऐलान कर दिया, टू हिम प्राउडली, बिल्कुल ही फ़ख्र के साथ उससे कह देता है, डू यू नो अली, अली इक्का, इक्का इस ए वर्ड इन केरला, ठीक है, केरला जो का वर्ड है, एल्डर ब्रदर इन द मापली डायलेक्ट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीकिंग के जो तरीक़े होते हैं, जैसे पुरकी है, लद्दाखी है, कश्मीरी, इस तरह बहुत पर्शियन वगैरह जो भी है, इंग्लिश है, इस तरह से डायलेक्ट के। तो डू यू नो अली अक्का, यानी अली भाई, आपको पता है, ठीक है, क्या कह रहा है अली का, जू इज़ एंटरिंग हाई स्कूल दिस ईयर, हाई स्कूल जा रही है। अली लुक्ड एट जू के देखता है, विद काइंडली आइज, यानी आंखें, देखो अब देखो, देखने की भी कई तरीके हैं, कुछ लोग बिल्कुल बुरी नज़र से देखते हैं, अच्छी नज़र से देखते हैं, तो एक रहमदिल आंखों के साथ, नज़रों के साथ उसने देखा। स्माइल्ड एंड सेड, मुस्कुराया और कहा, ऑफ कोर्स वी विल मेक श्योर दैट जू हैज़ द बेस्ट ड्रेस फॉर हाई स्कूल, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जू के लिए क्या हो, जू को क्या हो, हाई स्कूल के लिए बहुत बेहतरीन ड्रेस हो। अब आगे देखो, व्हेन द अदर कस्टमर्स हैड गॉन, जब दूसरे जो है कस्टमर्स चले गए, मधु हैड ओपन द बंडल ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, उसको खोल दिया। अली गोट है हिज मेजरिंग टेप, उसने अपना फीता निकाला जो है, नॉटेड हिज हेड, नॉटेड यानी सर हिलाया, विगोरसली, तेज़ी के साथ, एनर्जी के साथ, एंड सेड, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ो यंग लेडी, ठीक है, जवान खातून, मेरे बेटी, आप अच्छे से पढ़ाई करना। जू कुड नॉट बिलीव, जू को यकीन नहीं आ रहा था, दैट समवन हैड कॉल्ड हर यंग लेडी, कि उसने यंग लेडी कहा। एंड ए वेव ऑफ जॉय फिल्ड हर, एक लहर जो है, खुशी का लहर जो है उसके अंदर भर गया जब किसी ने उसको ये कहा। तो इससे पता चलता है कि
आपकी बातों का क्या असर होता है, ठीक है। देन अली सेड, अली ने कहा, जूस मदर दिस इज़ रामूज डॉटर, ये रामू की बेटी है। एंड रामू हैज़ बिन टेकन अप फ्रॉम अस, उसको हमसे ले लिया गया, यानी खुदा के पास ले गया है, खुदा ले गया तो भगवान ले गया वगैरह। लेट मी गिव रामूज डॉटर ए स्मॉल प्रेजेंट, अब यहाँ पे प्रेजेंट तोहफ़ा है, आज मुझे उसको एक छोटा सा तोहफ़ा देने दें रामू की बेटी को। ही पुल्ड आउट सम कलरफुल फैब्रिक्स, कुछ खूबसूरत कलर रंगीन कपड़े निकाले फ्रॉम द शेल्फ, शेल्फ जो सांस जो होते हैं स्टेप्स बने होते हैं। एंड स्प्रेड देम ऑन हिज टेबल, अब दर्जी की जो टेबल होता है वहाँ पे उसको फैलाया। जू सेलेक्ट बिछा दिया, जू सेलेक्ट सेलेक्ट व्हाट यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है वो सेलेक्ट कर लो। इफ़ रामू हैड बीन अलाइव, अगर रामू जिंदा होता, हैड बीन अलाइव, यू एंड योर मदर वुड नॉट हैव वोर्न ऑल क्लॉथ्स, तुम और तुम्हारी माँ ने पुराने कपड़े नहीं पहने होते, इसका मतलब उन्होंने पहना हुआ है। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होता है, ठीक है, इसमें रिग्रेट क्लॉज होता है, ये हमेशा पास परफेक्ट के साथ होता है। इफ रामू हैड बीन अलाइव, अगर वो जिंदा होते, यू एंड योर मदर वुड नॉट हैव वॉर्न, नहीं पहना होता ऑल क्लॉथ्स। यू मस्ट वेयर न्यू क्लॉथ्स टू हाई स्कूल, उसको ज़रूर नए कपड़े पहनना चाहिए। ही सेड, उसने कहा। मधु बर्स्ट इनटू टीयर्स यानी उसके आंखों से आंसू फूटने लगे। इवन एज शी स्मार्ट, हालांकि वो मुस्कुरा रही थी, जबकि वो मुस्कुरा भी रही थी उसी वक्त उसकी आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। जो स्टूड स्टेरिंग एट अली, वो उसको घूरते हुए रह गई, देखते हुए रह गई। हर मदर इन द फैब्रिक्स विद डिसबिलीफ, यानी मतलब शी कुड हार्डली बिलीव हर यू नो द मोमेंट, उस पर उसको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था, तो वो देखते रह गई। शी वॉज सो सरप्राइज, वो बहुत हैरान हो गई। एंड हैप्पी शी कुड डांस, ठीक है, जैसे कि वो नाच सकती थी खुशी के मारे, तो डांस कर सकती थी, किया नहीं है, शी कुड डांस, ठीक है। अलीज गिफ्ट ऑफ न्यू ड्रेस केम द डे बिफोर द स्कूल रीओपन्ड, अली के जो नया ड्रेस था वो कब आया, जब स्कूल खुलने से एक दिन पहले आया। मधु हेल्ड ईच ड्रेस अगेंस्ट जूस बॉडी, जू की बॉडी के साथ लगा कर उसको देख रहा था कि कितना जचता है। स्माइलिंग एंड नॉडिंग हर हेड, मुस्कुराते हुए और सर को हिलाते हुए। जू ब्रेथ इन द डिलीशियस सेंट ऑफ न्यू क्लॉथ्स, अब उसको जो है नए कपड़ों की एक अलग सी खुशबू जो है वो महसूस हो रही थी। सो दिस इज़ what we have done. We have finished reading the chapter. It's chapter is your part number 4. We will try to deal with the comprehension part in our next class, inshallah. Till then, take care, goodbye, and Khuda Hafiz. Keep reading your books and keep making your homeworks written in your books. Thank you for your kind attention.